जय हिंद टू एवरीवन। आज हमारे साथ हैं मिस्टर अभिमन्यु चौधरी। अ, हम चर्चा करेंगे आज स्टार्टअप्स का जो अपॉर्चुनिटी है फॉर आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स फॉर देयर सेकंड करियर पोस्ट हैविंग सर्व्ड इन द यूनिफॉर्म। मिस्टर चौधरी जो है ये जोजो डे करके एक स्टार्टअप है, उसके को फाउंडर हैं और वहाँ पर फिलहाल रेवेन्यू इंश्योरेंस को हेड करते हैं। Zozo Day is a funded startup. From what I understand, they have already raised Series B funding successfully, and Filal they have uh, 4 or 5 abroad offices: US, Europe, South Asia, Central UAE वाला जो Middle East वाला segment है, और इसके अलावा इंडिया में they have offices in Bangalore. Their head office is in Bangalore. They are working in Mumbai, NCR, Chennai, as well as Hyderabad and other prominent places. So the headcount is around 500, and they have ramped it up in last 10 odd years. इनको अच्छा experience है, and he's quite well immersed in the startup landscape. So welcome to today's talk, Mr. Chaudhary. Thank you, Captain, for having me. It's a pleasure and a very good morning to everyone based out of India. Happy to share what I know and where startup community as a whole can contribute, maybe to the armed forces post their retirement or once they are out from the ecosystem of the army. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Janaab. So आज Mr. Chaudhary has joined us from Dubai, and values network का एक बहुत बड़ा हिस्सा, और also one of the stated objectives is assisting armed forces officers in their transition from uniform to corporate and jobs after they have served the nation, having donned the uniform. आप पीछे हमने एक सेमिनार किया, उसमें भी आपने भागीदारी करी थी, एंड यू आर वन ऑफ द पैनलिस्ट देयर विद अस, और वहाँ भी इसी तरह की बातचीत हमने आपसे करी, तो काफी और लोगों के और बहुत सारे सवाल थे। मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो स्टार्टअप्स हैं उनका इंडियन इकोनॉमी में आपके हिसाब से देयर रोल इन नेक्स्ट 10 to 20 years किस तरह से वो प्ले आउट करेगा अगले 10 से 20 साल में? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? आप पिछले 10 साल से इस इंडस्ट्री में। थैंक यू विपुल। आई थिंक अब हम आगे की बात करें उससे पहले लेट्स डू अ फ्लैशबैक ऑफ द क्लोज टू डेकेड व्हिच हैव पास्ड बाय। तो अगर हम देखेंगे तो थिंग्स हैव चेंज रेडिकली इन लास्ट 10 years, और to float some data, I think, and there's no biases to any government here. I just want to highlight that. So if I name it's the government which is in existence, and that's the reason there could be some quote unquote coming out of the government. So pardon me for that. It's not a biases to any of the political party. So 2015-16 is where Honorable Prime Minister thought of investing a lot into ecosystem of a startup. और दैट्स वेयर पता नहीं हमें कितने लोगों को पता है, इन्वेस्ट इंडिया करके देयर इज a constant body which was created, and MD is Mr. Deepak Bagla, who is the CEO and MD of the Invest India. That's an initiative of Government of India. और इस संस्थान का बेसिक आइडिया ये था कि हम 2-3 चीजें प्रमोट कर सकें। एक तो any of the FDIs coming to India should be a free flow. तो उसको हम कैसे असिस्ट कर सकते हैं? जो भी FDIs आ रही हैं इंडिया में, can we make it a very easy and give maybe a very dedicated efforts with people assisting them to come to India? Can India be a home to the maximum FDI? पहला उद्देश्य इसका ये था। दूसरा उद्देश्य था कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को हम कैसे बढ़ाया जाए। और अगर मैं पिछले 7-8-10 साल की बात करूं तो 2015 में इंडिया में केवल और केवल रजिस्टर्ड स्टार्टअप की बात करूं तो 400-500 थे, और उस 400-500 स्टार्टअप, और हम सब जानते हैं बंसल ब्रदर, द फ्लिपकार्ट, हु क्रिएटेड दैट बज इनटू द स्टार्टअप सिस्टम वेयर every single person having an entrepreneurial skill passing from a B school or a graduation from any of the Ivy League college, एक ही सपना हो कि मैं अपना स्टार्टअप कर सकता हूं क्या वैसा इकोसिस्टम बने। तो with that I think Prime Minister of India set up that
इंस्टीट्यूशन विच वी कॉल इट इन्वेस्ट इंडिया, और तब से अब तक कुछ अगर फिगर दे हूं मैं तो बड़े इंटरेस्टिंग फिगर है। तो वन इज दैट 400 का नंबर आज अगर हम बात करें तो करीब करीब 95,000 है। सीधा सीधा ग्रोथ, दैट this is a growth, and I would say this is a most unprecedented transformation in the human history, I would say, in the free world. So that's the landscape India brings on to that. और अगर मैं FDI की भी बात करूं तो करीब करीब इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद में अपने फ्रॉम इन पास्ट 70 years 75 odd years करीब 915 बिलियन USD डॉलर्स का टोटल FDI आया है, जिसमें से 50%, over 50%, I would say close to 60%, 532 billion have come in last 8-9 years. That's what our India had been. और इस FDI का जो growth है, that is a world record, because in pandemic also we were able to raise the highest FDI, that is close to 83 billion. That's a world record. None of the country have got that. So that's a landscape India brings on in terms of the infrastructure, in terms of the people coming on to India. Now coming on to the startup world. Startup may what are the couple of elements that are being needed is from the government is that the ease of doing the business is what everyone look onto. Isiलिए if I have to give some numbers, as we speak, we are number 3 in total unicorns in the world, and unicorn is जिसका valuation 1 billion USD होता है. So roughly if I have to give 8,000 crore का valuation होता है, market cap होता है उसका, that is what the unicorn definition. India आज के दिन में stands at number 3 in the total unicorns, number 2 in the total startups, just behind the US. And we are number 1 in adding a new startup every day. We have surpassed US and China. So that's the boom India brings in. 2021 में हम हर महीने में एक यूनिकॉर्न ऐड करते थे, और आज के दिन में हम हर हफ्ते एक यूनिकॉर्न ऐड करते हैं. So which have raised India, I think that's what I would say India was 10 years in the journey of last 8-9 years. Coming now to Captain, your question that how India would be in coming 10 years from here on. I think as I already mentioned, it is unprecedented transformation growth India would be seeing it. As per the stats, by the time we attain 100 years of independence, that is 15th August 2047, I mean that's where India would land up. उस समय इंडिया, आज BCG की स्टडी है, 2000 के बाद में anyone who is born after 2000 is expected to spend close to $250,000 USD, करीब करीब $250,000 spend करेगा अपना लाइफ टाइम में. And think of the population by then, it would be close to 1.6 billion, and that would be the size of economy of the country. I think that gives you a broader spectrum. आज के दिन में, now since we want to understand what is the landscape where we are job startup gives up, I think today in startup as a community, we are able to give help, I would say, rather a lot of young entrepreneurs, a lot of people who want to be part of the journey. Close to 3.5 million, maybe roughly around close to 2.5 to 3x of what in overall the size of the uniforms would be in India, serving all the three put together. So I think 1.5 mil is what is the employment by overall the uniform, and I think we would be around 3.5. We are giving opportunities to the different startups. So that's the landscape, Captain, I wanted to just bring upon. Thank you for this question. So आपकी जो मुझे बात समझ आई कि पिछले 8 साल में हम 400 से लगभग 95,000 स्टार्टअप्स, मतलब एक सर्टेन लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, और अगले 25 साल में एज पर दी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप स्टडी, द इंडियन इकोनॉमी इज एट अ पोजीशन या इस तरह से प्लेस्ड है कि वो और इट्स गोइंग टू बी अ मच बिगर इकोनॉमी, सो देयर आर गोइंग टू बी इवन मोर स्टार्टअप्स. और जो आपने बताया कि ऑल्दो 1.5 मिलियन इज ओनली द आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, अगर हम इसमें अपने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को भी ऐड कर लेते हैं, विच इज द
CISF and BSF and CRPF and SSB वगैरह जो है, तो दैट मेक्स इट अनदर 1.5. तो हमारा लगभग 3 मिलियन का वर्कफोर्स है, एंड विच इज देन डिवाइडेड इन ऑफिसर्स, कमीशन ऑफिसर्स एंड नॉन कमीशन ऑफिसर्स. तो उसी के लगभग आप ये बोल रहे हैं कि 3.5 मिलियन का ही स्टार्टअप का वर्कफोर्स होगा आने वाले 15 से 20 साल में. अभी है, मैं कह रहा हूँ एज वी भी स्पीक. है. हाँ जी. एंड हाउ इट इज ग्रोइंग, सो इट वुड बी, आज के समय में 110 यूनिकॉर्न है. By 2025, in next 3 years, from 110, the unicorn would be 250. Again, highlighting it's 8,000 crore valuation which one unicorn have. And the best part is it's across the sector. It is not concentrated in one particular sector. आज के समय में highest is e-commerce, fintech, but there are lot in consumers promotion, there are lot in media and entertainment and so on and so forth. So logistics, healthcare, so they are ed tech, so it is a wide spectrum, so it is spread across. तो एक जगह consolidated नहीं है, या that is the beauty of the ecosystem. अब मैं थोड़ा सा एक अंदर का सवाल पूछना चाहूंगा आपके. ये तो हमने एक बहुत जनरलिस्ट, बहुत ब्रॉड बात करी. स्टार्टअप्स के अंदर काम करने का जो एक वर्क कल्चर है, बिकॉज जब इतनी रैपिडली ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करती हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ अ कल्चर एग्जिस्ट? आई मीन, इज इट वेरी स्ट्रक्चर्ड, बहुत हायरार्किकल रहता है? जैसे खासकर अगर आप एक आर्म फोर्सेस ऑफिसर की बात करें, तो वो ऑलरेडी एक बड़ी हायरार्किकल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, या जैसा हमने सुना है, मैंने तो आज तक कोई स्टार्टअप में काम किया नहीं, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है. इज इट वो जैसे बोलते हैं फ्लैट विद लॉट ऑफ ऑटोनॉमी? एंड सो व्हाट एग्जैक्टली इज द वर्क कल्चर? एक जनरल व्यू. आई नो दैट यू कैन नॉट स्पीक फॉर द इंडस्ट्री, बट एटलीस्ट जो आपका अनुभव है उसके हिसाब से. पहली बात तो सर, आप खुद you yourself are running a startup, and startup doesn't mean that you have to have a number of people. So startup is, I think, a जज्बा होता है कुछ शुरू करने का. So coming back to your question, see, कोई भी स्टार्टअप जब चालू करते हैं तो पहला इंटेंट ये होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर, किसी भी फाउंडर का, कि रेवेन्यू कैसे लाया जाए. और दैट्स द ओनली कोर मेट्रिक्स विच इज बीइंग ट्रैक्ड. तो एक ही केपीआई होता है कि हर एक किसी का जो भी काम कर रहा है, चाहे वो 2 बंदे की कंपनी है, चाहे वो 200 की है, चाहे 2000 की है, द इंटेंट इज कि रेवेन्यू कैसे लेके आया जाए इनिशियल, क्योंकि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है इनिशियली. एंड very few starters are fortunate to get the seed, but they have to have either a fantastic business plan in play, या कुछ revenue के number आने चाहिए. So it is only the seed which you could have it on the through a beautiful presentation. उसके बाद जैसे ही आपको 1 साल 2 साल होते हैं, आप सीरीज ए सीरीज बी के लिए जाते हैं, सबके सब ये देखते हैं कितना आपने बिजनेस स्टैब्लिश किया है, आपका एबिडा कितना है, आपका टॉप लाइन कितना आप लेके आ रहे हैं. सो इट इज मोर ऑन रेवेन्यू. So hence, coming back to culture, I think when everyone is running for the revenue of the company, I think processes, structure, culture at times in the initial phase takes a backseat with any of the startup, irrespective of the size of the startup. I could comment at least in the initial 3-4 years of any of the startup, you could think of the biggest could be the Flipkart or the Oyos of the world. Initial phase is absolutely tough. तो बहुत ही हेवाई होता है Vipul to answer it very specifically. कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है. Okay, so the structure of a startup initial work culture is there is no structure. It is fluid. जिसको जैसे काम मिलेगा करना है, रेवेन्यू लेकर के, मतलब you have to basically contribute to the revenue growth of the company. लेकिन इतने फ्लूइड में अगर कोई काम शुरू करता है, तो प्रोफेशनली कितना रिवॉर्डिंग रहेगा एक करियर for an individual, let's say, who joins an organization in the initial phases या mid phases में करता है? See, startup is all about the aspiration. So there are two kind of workforce who join a startup. One, someone who had a desire to be an entrepreneur, but थोड़ा सा हिचक रही, वो जज्बा पूरा नहीं ले पाए कि एक entrepreneur बन जाए. ठीक है. दूसरा वो बंदे जो कि अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, जो कि established organization, anyone. So you could even count on the corporate. The biggies work very similar to a structured government
PSU और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जिसको ये दिखाना है कि मैं कुछ हटके कर सकता हूँ, कुछ अलग कर सकता हूँ, they join. And finally, if you want to bet your life for want to bet your life today for a better future, because जो आपको ESOP रिटर्न दे सकता है, वो I think none of the investment could give her that kind of a return, and that could be phenomenal beyond the capacity of any of the employees. So I think वो एक बड़ा plus point होता है. So people bank upon those ESOP value and wait for the event to come in where they can make big money. So if I have to sum it up, पहला होता है जिसने सोचा था कभी मैं करूंगा, स्टार्टअप नहीं कर पाया, वो अपना जज्बा आजमा सकता है साथ में मिलके. सेकंड वो लोग जिनको कि कुछ करके दिखाना है और स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर पाए, एंड दे वांट शो समथिंग, दे शुड जॉइन. और तीसरा वो बंदा जिसको कि रिवॉर्डिंग थोड़ा सा मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए they are fine to have that kind of patience. So I would say these are the three things, Vipul. अब आपने क्योंकि ESOPs लिया, और मेरी जो थोड़ी बहुत फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग है, ESOPs इज वेस्टेड इक्विटी जो आने वाले टाइम में बढ़ेगी. इक्विटी मींस देयर इज सम अमाउंट ऑफ रिस्क. तो आप क्या कहेंगे कि फ्रॉम अ करियर पर्सपेक्टिव व्हाट इज द रिस्क एलिमेंट इन बीइंग इन, अगर मेरे को एक ऑप्शन मिले to start my career in let's say an already established organized workplace vis-a-vis a startup like Zozo Day or a similar organization, what are my risks? रिवॉर्ड तो मुझे समझ आया, ESOPs लिया, और अगर वो लिस्टिंग हो गई या पैसा बढ़ेगा तो उस जैसा रिटर्न कहीं नहीं आएगा, बट डाउनसाइड क्या है उसमें? Since we are specifically talking to the armed forces version, or otherwise also भी चीजें स्ट्रक्चर्ड नहीं होती हैं. सो समवन कमिंग फ्रॉम लार्ज सेटअप, तो वो क्या है कि वहां पे हर रोज, सो एवरीथिंग, आई जनरली कॉल इट आउट, एवरीथिंग इज P0 ऑन एवरी डे. तो आज आपने कहा कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल पता चल रहा है कि या शाम को पता चल रहा है दूसरी चीज आ गई मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू ड्रॉप इन. सो थिंग्स आर वेरी अनस्ट्रक्चर्ड व्हिच एट टाइम्स टेक टोल ऑन द वर्किंग कल्चर ऑफ एन इंडिविजुअल. तो वो मतलब मजा आना बंद हो जाता है जो इस कल्चर में नहीं होता. सो फ्लूइड नहीं, मतलब एजिलिटी आर द एट्रीब्यूट्स जो स्टार्टअप देखता है, मतलब अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ हसलर. तो डाउन साइड में ये है कि बंदा बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाता है, एडजस्ट नहीं हो पाता है क्योंकि सब कुछ अनस्ट्रक्चर्ड हो रहा होता है. तो बंदा कहता है यार कहाँ आके फंस गया हूं मैं, मतलब दैट इज साइड. बाकी मुझे नहीं लगता है कि बिकॉज बाकी कोई बहुत ज्यादा नहीं होता अपार्ट फ्रॉम बीइंग unstructured pieces, because salaries also अगर आप देखोगे तो startup pays more than the corporate, any of the structured startups, structured organization or the larger organization. So any of the startup pays extra, and the data which I've been I think it's a McKinsey data, startup pays almost aggregatedly 50 to 55% more than the startup. I mean, there could be a variance with the small to mid to large, बट जो इनिशियल फेज के इनिशियल स्टार्टअप सैलरीज अच्छी देते हैं, वो हैव बीन डिसेंटली फंडेड, दे थ्रो मनी because they want things to happen quickly, so they don't mind paying money and they don't mind sharing the equity as well. So I think that's the downside, I would say. So downside जो है वो ये है कि रिस्क ऑफ बर्नआउट रहता है अगर बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस एंड फ्लूइड वर्क कल्चर. मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा, मुझे नहीं पता आपका खुद कितना एक्सपोजर है, शायद नहीं भी होगा, बट आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स के स्किल सेट्स की? उनको क्या एक्सपोजर है टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस का? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्किल सेट्स ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स? Yeah, and again, this is from an outside world, and I would like to acknowledge the fact that जितनी मुझे समझ है मैं उतना बताऊंगा. Don't take it otherwise. Some attributes could be right or wrong, but that's an understanding as an outside world I would have. If I have to say count upon a typical strengths, I find army officers, or I would say any of the uniform, irrespective, they are very, very structured. That's number one. Second is they are very disciplined.
Third is integrity is that's being taught throughout the life. So वहां पे compromise नहीं करते, और and at times they are very straightforward, maybe while they speak. So I think ये 4-5 चीजें हैं जो कि एक आर्मी ऑफिसर और यूनिफॉर्म को डिफाइन करता है as an outsider I could see it. So these are the 4-5 sides I could attributes I could find, sir, as per me. ओके और अगर मैं आपसे कहूं कि फ्रॉम अ स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू कौन से वो स्किल्स या ट्रेड्स हैं जो आप लोगों को बहुत डिजायरेबल लगेंगे अगर आप किसी को हायर करना चाह रहे हैं या आप किसी को कंसिडर कर रहे हैं तो आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एन आर्म्ड फोर्सेस आल्सो हाँ, so could be मतलब anyone to be honest, while any of the entrepreneur is running for the revenue, और उसको पता होता है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है अपने बहुत सारे प्रोसेसेस, वेदर इट्स अ फाइनेंस प्रोसेस, वेदर इट्स एन ऑपरेशनल प्रोसेस, वेयर एट टाइम्स इट्स टेक्निकल प्रोसेसेस, और मनी मन वो चाहता है कि मेरे प्रोसेस स्ट्रक्चर मतलब कोई लेके आ जाए, बट उसके पास क्योंकि खुद के पास टाइम होता नहीं है, और उसकी कोर टीम एट टाइम्स इज सो बिजी विद ऑल ऑफ दैट दे कीप कॉम्प्रोमाइजिंग. So I think if someone from armed forces bring that structure with the agility in place, so might not be a very hard coded one कि ऐसे ही होगा, but maybe broaderly ऐसे ही होगा with some loopholes which are still balanced out to bring that culture. So from maybe we call it in startup there is no culture, there is agriculture. From that moving to maybe a stage 2 or a stage 3 is generally helpful, which I think any of the armed force officer brings that process and the system with that agility, I would say. तो अभिमन्यु आप वो जैसे वो शादी के इश्तिहार में होता है कि मॉडर्न ब्लेंडेड विद ट्रेडिशनल वैल्यूज टाइप, तो स्ट्रक्चर विद एजिलिटी उस तरह से करके okay. Yeah, एक in a मैं way. जो आपसे हाँ एक जी. तो आपको ऐसा क्या लगता है ऐसी कौन सी वो ट्रेड्स हैं या वो बिहेवियर हैं जो शायद आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स को इनहिबिट करती हैं या उनकी पोटेंशियल को रोकती हैं फ्रॉम बीइंग मोर कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स, या यूं कहें और स्पष्ट भाषा में कि क्या उन्हें थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए इफ दे वांट टू हैव अ करियर इन द स्टार्टअप लैंडस्केप? Again, and I quote unquote it again मेरी जो अंडरस्टैंडिंग जो मुझे लगता है with आप खुल के seeing from बोलिए, कोई बात नहीं. so I think आर्म फोर्सेस बहुत ही लिमिटेड स्फीयर में काम करती है. सो दिस इज वन ऑर्गेनाइजेशन which works in a dedicated fashion and dedicated circle, I would say. They revolve around that circle, so exposure to the outside world is relatively limited. So अपने में ही because उनका सब कुछ defined described है, तो स्टेक होल्डर बहुत सारे नहीं होते हैं. सो मतलब दे आर लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ स्टेक होल्डर्स. आउटसाइड वर्ल्ड से बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता है. सो दैट इज सेकंड. थर्ड कुड बी negotiation, and negotiation I'm not saying just in terms of the business perspective, overall negotiation. आज मैं और आप किसी चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो I think we are negotiating on our viewpoint, wherein it's top down in armed forces generally, which I have seen, and generally that's also true for any of the larger organization, even in the corporate world. तो top down approach में क्या है, बंदा over the period of time भूल जाता है, उसको ये लगता है हाँ यार ठीक है, these are the direction I have to work upon, I don't have to negotiate much, etc etc. So I think ये 3-4 चीजें हैं जो कि विपुल मुझे लगता है कि मतलब those are 2-3 things which I feel personally. So एक तो आप जब स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, आउटसाइड एक्सपोजर की बात करते हैं, जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि इन लोगों का जो एक्सपोजर है वो लिमिटेड टू प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू एक्सटर्नल अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड इंटरनल थ्रेट्स हैं. द स्टेक होल्डर इज ऑल्दो द स्टेक होल्डर्स आर द पॉपुलेशन ऑफ द इंटायर सिटीजनरी ऑफ द नेशन, तो बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, बट डेली इंटरेक्शन या रेगुलर इंटरेक्शन नहीं होता है. One second, from what I understand, what you're trying to say is that
since they are not negotiating directly in terms of the work they are doing, so they rather follow the hierarchical SOPs or hierarchical instructions. So over a period of time, their negotiation skills are not really that exposed, या उनको उतना उस तरह का मौका नहीं मिलता है. But given an opportunity, अगर इन चीजों पे काम करें, तो they can contribute in a much bigger and more meatier fashion for their careers. Absolutely, because you go to any of the startup, I'm re-highlighting it again. Processes बहुत हेवाई होते हैं, systems बहुत हेवाई होते हैं, मतलब there are a lot of loopholes, and by virtue of serving in the armed forces, that brings that command, I think, और उसके साथ में अगर एक agility जोड़ दें थोड़ा सा, तो वो बड़ा फर्क हो जाता है. चक्कर क्या है ना, कैप्टन, SOPs are very much laid down because the chances, if you don't follow those SOP, the chances for any of the uniform officer could be very brutal. I mean, it's fatal. So that's the reason you can't deviate from those SOPs. Wherein coming to any of the startup, there are chances even from a laid down SOPs how much you could breach it or how much you could deviate from that. I think that's the only play I would say. मैं अब आपसे मान लीजिए आई एम एन ऑफिसर हु इज ट्रांजिशनिंग, हु इज इन दैट फेज, और मुझे अपने लिए एक करियर डेवलप करना है, तो क्या आप मुझे एक थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप या कोई बेसिक रोड मैप दे सकते हैं फ्रॉम अ स्टार्टअप पर्सपेक्टिव कि मैं वहां कैसे अपने लिए काम ढूंढ सकता हूँ? सी, एक तो इफ आई हैव टू गिव अ लैंडस्केप, आज के समय में जो स्टार्टअप है, इट इज टेकिंग अप शेप इन टर्म्स ऑफ सिटीज. सो एक कंसोलिडेटेड नहीं है, तो स्टार्टअप इज बैंगलोर एंड दिल्ली बीइंग द टॉप नॉच, तो उन दोनों में हमेशा नेक ऑन रहती है. बट बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, so there are much, and I think with the growing startup ecosystem, there would be again tier 2 cities like Jaipur, Indore, etc., where you would see. So one is that I would say don't consolidate yourself to one particular place. मुझे तो, मैं रिटायर हो रहा हूँ, मुझे जाके मेरे घर में सेटल होना है, वहां मैं कुछ कर सकता हूँ, या that's generally a common phenomenon. So I think we should be open, and I think no one else can be better than the armed forces, who change their base every 2 to 3 years. That's one part. Second is they should start enhancing the network to the corporate world. And there are, I mean, not as laid down processes, but क्या आप स्टार्टअप इकोसिस्टम, कॉर्पोरेट इकोसिस्टम में अपनी प्रेजेंस फेल्ट कराना चालू कर सकते हैं? देयर कुड बी मल्टीपल वेज टू डू दैट. देयर आर लॉट ऑफ events where different startups come in, where different corporates come in, their leaders starting from a CEO to CFO to CTO to CDO to CMO, CHRO. So by that I mean that the kind of trade or the kind of segment or the kind of position you want to acquire, उसके हिसाब से आप अपना थोड़ा थोड़ा नेटवर्क बढ़ाना चालू कर देना चाहिए. Second, this could be face to face. Second is LinkedIn is another way, which generally armed forces might not find a value as of now. So I think those are very formulated corporate channel where the interaction should increase, and that is second way. Third is startup communities mein, I always call it out, and during our last presentation also, Captain, I called that out कि आप स्टार्टअप कम्युनिटी में फाउंडर्स को रीच आउट कर सकते हो. आज के समय में 95,000 स्टार्टअप हैं, जिसमें से करीब 125 तो दे आर यूनिकॉर्न्स, और उन 95,000 में से करीब 18,000 फंडेड स्टार्टअप है. सो द हराइजन इज टू मच. वी शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ कि आप अगर हसलर हैं, और आर्म फोर्सेस आर जनरली पीपल आर हसलर, आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिएगा कि मेरे को तो यही काम करना है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, ऐसे होगा. कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 बंदे हैं, 200 बंदे हैं, 300 बंदे हैं, आप उसमें से कोई भी एक चैप्टर पकड़िए. और चैप्टर से मेरा मतलब है कोई भी सब्जेक्ट पकड़िए वेयर यू आर अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, एंड स्टार्ट वर्किंग विद द फाउंडर्स. द आउटलुक वुड चेंज. द आउटलुक चेंजेस व्हेन यू वर्क विद द फाउंडर, बिकॉज आप ऑफिस बॉय से लेके सीईओ तक का काम सब कर रहे होते हैं एज अ फाउंडर, एंड टिल एनी स्टेज. सो आई थिंक दैट इज सेकंड.
Third is there are a lot of now larger startup, and I would not call them startups. It's just the DNA. That's the reason they feel proud to be called a startup. But otherwise, they are a very, very mature organization. The tune of Flipkart, Oyo, Big Basket, uh, Paytm, and so forth. So there are bigger names wherein you feel कि यार मैं छोटे वाले से नहीं बड़े वाले. They value, I think. Second, lastly, I would say that अगर आपको स्टार्टअप को जज भी करना है तो बहुत सारे तरीके हैं. Glassdoor is one piece where your employees come and write about the culture of the organization. It is like the जैसे आप होटल बुक करते हैं रिव्यूज हैं, so Glassdoor is a employer review जहां पे आप जाके चेक करिए, आपको कल्चर का ब्रॉडर आइडिया लग जाएगा. Lot of funded startup have their financials which are open. You could just have a look at the financials to understand. Fundraise, and lastly, who have invested in the startup. So that also gives you a flavor कि startup का life span कैसा रह सकता है, या how the growth could be for the startup. These are few of the points, Captain. तो मैं आपकी बात को समराइज कर देता हूँ. पहला तो 4-5 मेन सिटीज हैं, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद एंड पुणे, जहाँ पे स्टार्टअप्स का कॉन्सेंट्रेशन है. दूसरा आपने बोला इंडस्ट्री इवेंट्स में नेटवर्क करने से. थर्ड, जो स्टार्टअप कम्युनिटी के फाउंडर्स हैं, जो आपने बताया लगभग 18,000 स्टार्टअप्स आर फंडेड एट सम स्टेज और अनदर, तो उन फाउंडर्स तक पहुंचना, उनके साथ में अपने सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से काम करना, और ग्लासडोर एंड फंडरेजर से कुछ डेटा लिया जा सकता है टू अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच. मेरे लास्ट के 2 सवाल हैं, उसके बाद वील ओपन दी सेशन टू ऑडियंस क्वेश्चंस. थोड़ा सा मुझे, और ये 2 सवाल उन लोगों के लिए हैं जो खुद किसी स्टेज पर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या अपना कुछ करना चाहते हैं. मुझे थोड़ा सा आप जोजो डे की जर्नी को 1 से 2 मिनट में समराइज कर सकते हैं, जस्ट एज अ रोड मैप फॉर दोज हु वांट टू बी एंटरप्रेन्योर्स देमसेल्व्स. तो वन इज दैट आप स्टक मत हो, जो आपने स्टार्ट किया है कि आप उसी पे आगे बढ़ेंगे. बाय दैट आई मीन, हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था 2012 में, वी स्टार्टेड विद कॉर्पोरेट गिफ्टिंग विद गिफ्ट XOXO इज द नेम. उस समय हमने सोचा था कि कॉर्पोरेट में मग, कप, टी शर्ट, पेन, जो भी आप देखते हैं, जो कि कंपनी का इंडोर्सिंग होके अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, चैनल पार्टनर के, वहां से हमने शुरू किया था. और हमने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया था कि ये स्केलेबल बिजनेस नहीं है, बिकॉज इसमें हमारा कंट्रोल कुछ नहीं है. मैं किसी से खरीद रहा हूँ और वहां पे कुछ ना कुछ आता, प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, तो स्केलेबल नहीं है. इन्वेंट्री इज नॉट अंडर माय कंप्लीट कंट्रोल डिस्पाइट ऑफ, तो स्केलेबल नहीं था, तो वी पिवटेड इट. वहां से हमने पिवट किया. हमने कहा कि मैच्योर मार्केट में एक्सपीरियंसेस बहुत कॉमन है किसी भी पर्सनल या प्रोफेशनल ओकेजन के लिए. सो किसी का वेडिंग एनिवर्सरी है या किसी की शादी है, इंडिया में हम लोग एनवेलप में पैसे डाल के देते हैं. मैच्योर, एनी ऑफ द मैच्योर इकोनॉमीज वुड गिव एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस कुड बी किसी को बहुत बढ़िया ताज का एक्सपीरियंस दे दिया टू स्टे विद, किसी को डाइनिंग एक्सपीरियंस दे दिया, किसी को टू गो इन मे बी बंजी जंपिंग एक्सपीरियंस दे दिया, एंड सो फोर्थ. देयर कुड बी डिफरेंट एडवेंचर टू फिलैंथ्रोपी टू कुछ भी. आप बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि पेड़ लगाओ अभियान. ठीक है भैया, हमने आपके नाम पे पेड़ लगा दिए हैं, मतलब. सो दैट्स वेयर वी पिवटेड टू एक्सपीरियंसेस. वहां पर भी हमें प्रॉब्लम क्या आने लग गई कि इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं करते थे, तो दिक्कत आने लग गई. और सेकंड, हमें सबने कहा कि आप इसको डिजिटाइज कर सकते हैं क्या कंप्लीटली. एंड अमंग 5 of us, 2 of my other co-founders happen to be the Ivy League techies, Ivy League college techies. So they always had a mind कि यार डिजिटल कर सकते हैं. एंड वी पिवटेड अगेन टू रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन एज अ चैप्टर फॉर एम्प्लॉयज. वहां पे हमने रियलाइज किया कि वी वर गेनिंग गुड पोटेंशियल, बट पेंडेमिक आया. एम्प्लॉयज, पहला कट लगता है कॉर्पोरेट में किसी भी चीज के ऊपर, तो एम्प्लॉयज की सैलरी उड़ा दो, एम्प्लॉयज को उड़ा दो, उनके बेनिफिट्स कम कर दो. दैट्स बेसिक. कभी भी आपको ब्रांड की मार्केटिंग या सेल्स के ऊपर कट नहीं लगता, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेशन इंजन होते हैं. तो उनने जब पेंडेमिक आया, हमने क्या किया, वी वर ऑन द एम्प्लॉय साइड. हमने कहा कि यार प्रोडक्ट डेवलप करते हैं जिसमें हम चैनल पार्टनर्स की या कंज्यूमर का रिवॉर्ड्स, लॉयल्टी, अवार्डिंग देखेंगे. क्या हम उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं. हमने 1-1.5 साल में ड्यूरिंग पेंडेमिक वो सॉफ्टवेयर बना दिया. एंड दैट्स वेयर वी अगेन पिवटेड.
So since you asked specifically, Vipul, so it is keep pivoting and don't get stuck with the idea you started with. At that point of time, that idea could be great, but today might not have a relevance. It's like टीवी बहुत बहुत बड़े बड़े चालू हुए थे और आज के समय में बहुत स्लीक होते चले गए. एंड आई पर्सनली नो लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु वर मेकिंग पिक्चर ट्यूब्स फ्लॉप्ड आउट. दे जस्ट वैनिश्ड बिकॉज दे डिड नॉट इनोवेट. सो आपको कंप्लीटली, एंड वी आर इनटू टेक्नोलॉजी बिजनेस. टेक्नोलॉजी में तो आपको पता ही है कितना जल्दी चेंज होता है. सो keep the pace with the changing environment. I would say that's where we were able to survive despite not being raising fund or despite being bootstrapped for close to 8-9 years. So that's what I wanted to convey. ओके, वाह. सो आपने, क्योंकि मेरे आखिरी सवाल का थोड़ा सा आपने मुझे अपने ही आंसर में भूमिका भी दे दी है. आपने बोला आप 8-9 साल तक बूटस्ट्रैप रहे, शुरू में थोड़ा सा फंड रेज किया था. मुझे ये जो फंड रेजिंग वाला जो थोड़ा, क्योंकि अगेन हम लोगों का एक्सपोजर फंड रेजिंग का नहीं है. वी कम फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ फंड रेजिंग का मतलब सैलरी होती है जो 20 तारीख को इनवेरिएबली आती है, या हम लोगों ने शार्क टैंक देखा होगा. ये फंड रेजिंग वाला इकोसिस्टम थोड़ा सा कैसे काम करता है, इस पे भी बता दीजिए, ताकि अगर कोई हम में से सोचता है कभी अपना कुछ आइडिया को एग्जीक्यूट करने का, तो कहाँ से इन्वेस्टर्स ढूंढ सकते हैं, किस तरह से कुछ पैसा रेज किया जा सकता है. फैंटास्टिक. आई थिंक इसमें 2-3 चीजें हैं. पहला तो जब आप सीड, एंड बाय सीड आई मीन जब आपका कंसेप्चुअलाइजेशन पे, आपका बिजनेस मॉडल कंसेप्चुअलाइजेशन स्टेज पे है, उस समय मैं आपके साथ विपुल शेयर कर दूंगा. देयर आर मल्टीपल ग्रुप्स वेयर इन यू कुड शेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ योर आइडिया, एंड दैट रेंजेस द फंड रेज फ्रॉम 2-3-4-5 लाख से लेके मे बी 1-1.5 करोड़ तक. सो दैट इज इनिशियल, where just on the concept of your idea people might do it, and there are lot of people who do it in a personal capacity as well. कि यार मेरे पास ज्यादा नहीं है, हम 3-4 दोस्त हैं, आइडिया अच्छा लग रहा है, 5-5 लाख रुपए मिला के हम पांचों ने 25 लाख रुपए डाल दिए. जस्ट एन एग्जांपल. सो आप उस पे, एंड वी एट Zozode started in a very similar fashion. I still remember, I mean, late Naveen Chatri, I just passed out, may God gives grace to his soul. He was IIT Kharagpur 69, was PNG, and then he was with Kestrel board member. He invested in us just 50 lakh in 2013-14. That's what we call it as a seed. He believed in the idea. He believed in. So जो initial funding आती है विपुल, वो आइडिया से ज्यादा एंटरप्रेन्योर के ऊपर आती है. सो बंदे के ऊपर, मतलब फाउंडर के ऊपर पैसा डाल रहे होते हैं आइडिया, बिकॉज आइडिया बहुत ही नीसेंट स्टेज पे होता है. सो उसके लिए बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं वेयर इन पीपल लुक आउट फॉर दोज आइडिया एंड दे आर हैप्पी टू इन्वेस्ट. आई विल शेयर maybe the links of those groups where people can once you passes, and then you start moving towards the series A, B, C, I mean need of the fund. That's where I think it's a pure place from selling your product. Now you are selling, pitching about your company. So प्योर प्ले सेल्स होता है, और आपको एक स्टोरी टेलिंग होती है. यू कैन नॉट हैव अ प्योर नंबर्स, एंड यू कैन नॉट हैव जस्ट द प्योर आइडियाज. सो इट इज अ स्टोरी विच यू हैव टू क्राफ्ट इन अ वे जिसको अगले को क्लिक हो जाए. तो आई थिंक आई वुड से दीज आर द 2 things which should be followed. क्योंकि आप खुद रेवेन्यू इंश्योरेंस में है, आपने बोला सेलिंग है, सब कुछ है. मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ओरिएंटेड पूछ लेता हूँ. मैंने आप लोगों के कुछ एडवर्टाइजमेंट्स देखे हैं. ये Zozode कार्ड क्या है जी जो दिवाली पर आप लोग ऑफर करते हो, ताकि अगर इनमें से हमारे ऑडियंस में से या किसी को कोई इच्छा हो तो दे कैन प्रॉब्ली एंड देन वी ओपन द क्वेश्चन टू ऑडियंस. सो हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं. सो वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ आवर्स इज marketplace or the catalog, whatever you say. So we were so this is again from the client side which came in. हम उस बिजनेस में थे जहाँ पे आप पॉइंट्स एक्यूमुलेट कर रहे थे, रिवॉर्ड्स एक्यूमुलेट कर रहे थे किसी ना किसी KPI के ऊपर, या किसी वैल्यू के ऊपर, या किसी टच पॉइंट के ऊपर. इट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी यू बाइंग अ प्रोडक्ट एंड ब्रांड वांट्स टू रिकॉग्नाइज यू, और यू आर एन एम्प्लॉय, इट्स योर बर्थडे एनिवर्सरी, और यू हैव डन समथिंग फैंटाबुलस ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको कंपनी रिवॉर्ड करना चाहती है. तो वो टच पॉइंट थे, एक्यूमुलेशन इंजन था हमारे पास. देन ऑल ऑफ द पीपल सेड कि बर्निंग के लिए हमें एक और बंदा चाहिए. सो अगेन दिस वाज अ एवोल्यूशन व्हिच क्लाइंट्स टॉट अस. सो वी नाउ हैव द वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक स्टैक. मेरा मतलब है हमने क्या किया, एक साइड में टेक्नोलॉजी स्टैक कर दिया जहां पे हमने सबके साथ इंटीग्रेट मार दिया.
कोई कहता है मैं MS Team Slack यूज कर रहा हूँ, आपका क्यों यूज करूँ सर, हम उसके अंदर भी यूज करते हैं। कोई HRMS कहता है मैं SAP यूज कर रहा हूँ सर, आप मुझे उसके अंदर यूज कर सकते हैं। कोई कहता है मैं CRM में HubSpot यूज कर रहा हूँ, आप मेरे प्रोडक्ट को उसके अंदर यूज कर सकते हैं। So with the time, what we did is we build a very scalable tech stack where we are able to integrate with them. And that's where our marketplace evolved, people, where over 100 plus countries, we have almost 10,000 options for people to burn those points. And those could be your Amazon, Flipkart in Indian context, or a big basket. You could think of any of your, or Shopper Shop, any of the place where you are doing a spend, वो हमने कंसोलिडेट करके एक प्लेटफॉर्म पे दे दिया, जहाँ पे जाके कोई एम्प्लॉय है, कोई चैनल पार्टनर है, कोई कंज्यूमर है, वो जाके अपने उन पॉइंट्स को रिडीम कर सकता है, बर्न कर सकता है। सो दैट्स वेयर व्हाट आवर कैटलॉग इज ऑल अबाउट। सो ऑडियंस को मैं थोड़ा समझा देता हूँ। इसका मतलब ये कि आप किसी भी तरह की शॉपिंग अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, मिल्क बास्केट पर इधर उधर करते हैं, और अगर आप उन पॉइंट्स को जोजो डे के कैटलॉग में एक्यूमुलेट करते हैं, तो उसके बाद में आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर उन पॉइंट्स को, या आप जोजो डे से बाइंग करके इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने लिए सामान या सर्विसेज खरीद सकते हैं। Thank you so much, Abhimanyu, for your time today and giving us the basic guidance about the startup landscape.